Welcome back to Silverbacks English Medium School, Mansarovar, Palanpur. Children, today we will start our new lesson in social science, lesson number 6. The name of lesson, Mauryan Age, Chandragupta and Emperor Ashoka. This chapter is about the establishment of India's first empire, administration and Emperor Ashoka. Children, in this chapter we will study about Chandragupta Maurya, how the Maurya dynasty started, and Emperor Ashoka. It is about the remarkable contributions of important states and dynasties of ancient India. Example, stone inscriptions of Ashoka. Lion figure is on the pillar of Sarnath and built by the Emperor Ashoka of Mauryan dynasty. India recognized it as a national symbol. जो लायन पे आपने देखा होगा कि लायन फिगर इज ऑन द कॉइन. So lion figure is on the pillar of Sarnath and is built by the Emperor Ashoka of Mauryan dynasty, and India recognized it as a national symbol. Then it's about Mauryan dynasty. Who founded the Mauryan dynasty? Who was the founder of Mauryan dynasty? Chandragupta Maurya. The founder of Mauryan dynasty was Chandragupta Maurya, and his gurus कौन थे? उनके गुरु कौन थे? चाणक्य. चाणक्य के दूसरे नाम भी है विष्णुगुप्ता, जो कि कॉल विष्णुगुप्ता ऑल्सो. देन चाणक्य का दूसरा नाम भी क्या है? कौटिल्य ऑल्सो. बट ज्यादातर हम लोग उनको चाणक्य के नाम से ही जानते हैं. बट आई वांट टू जस्ट गिव इन्फॉर्मेशन दैट चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी है एंड कौटिल्य ऑल्सो. So Chandragupta Maurya ruled between 321 BC to 297 BC. BC means what? Before Christ. Okay, children. So I hope you understand this. So the lion capital of Sarnath was, the pillar was made by the Emperor Ashoka of Mauryan dynasty. Now we will read about how the Mauryan dynasty started. So after defeating Dhananand of Nand dynasty in 321 BC at Magad, with the help of whom? With the help of his guru चाणक्य. चाणक्य की हेल्प से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने जो धनानंद थे उनको हराया था, ऑफ धनानंद ऑफ नंद डायनेस्टी, उनको हराया था युद्ध में. एंड ही टुक द थ्रोन ऑफ मगध विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस एंड विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस चाणक्य. विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड धनानंद. देन I want to tell you that Shastra and Shastra also trained. Shastra and Shastra was also taught to Chandragupta Maurya by Chanakya. चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को शस्त्र चलाना, कैसे शस्त्र चलाना चाहिए, and he also give knowledge of शास्त्र to चंद्रगुप्त मौर्य. तो उसको हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त को शस्त्र और शास्त्र का नॉलेज किसने दिया था? तो यू शुड नो दैट चाणक्य ने उसको चंद्रगुप्त को नॉलेज दिया था कि शस्त्र कैसे चलाना चाहिए, और शास्त्र का नॉलेज चंद्रगुप्त को चाणक्य से ही मिला था. देन आफ्टर डिफीटिंग धनानंद, चंद्रगुप्त conquered Kabul, Kandahar, Herat and Balochistan after defeating Greek king Seleucus Nicator. Seleucus Nicator के साथ में भी उसने युद्ध किया, और उसके बाद he conquered 4 territories: काबुल, कंधार, हेरात एंड बलोचिस्तान. सो जब उसने युद्ध किया, कौन किसके साथ उसने युद्ध किया? ग्रीक किंग सेल्यूकस निकेटर के साथ उसने युद्ध किया, और उसके चारों 4 टेरिटरीज थी. कौन सी टेरिटरीज थी? काबुल, कंधार, हेरात एंड बलोचिस्तान, वो उसने ले ली. सो यू कैन से दैट ही कंक्वर्ड 4 टेरिटरीज ऑफ ग्रीक किंग निकेटर, काबुल, कंधार, हेरात एंड बलोचिस्तान. सो जब ग्रीक किंग की जो चारों प्रदेश उसने जीते, उसने ग्रीक किंग के साथ युद्ध किया, जो कि ग्रीक किंग उसका नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर. उसके साथ उसने युद्ध किया, और उसके जो चारों 4 प्रदेश थे, काबुल, कंधार, हेरात एंड बलूचिस्तान, वो उसने चारों 4 प्रदेशों पे उसने अपना राज्य फैलाना स्टार्ट किया. तो जो ग्रीक किंग था वो बहुत इम्प्रेस हुआ था. वो चंद्रगुप्त की ब्रेवरी से बहुत इम्प्रेस होके उसने अपनी डॉटर जो थी, उसका नाम था हेलेना, उसकी शादी करवा दी चंद्रगुप्त मौर्य से. सो इम्प्रेस्ड बाय चंद्रगुप्त ब्रेवरी, Seleucus married his daughter Helena with Chandragupta.
In the court of Chandragupta, Greek king sent his ambassador Megasthenes. जब उसकी शादी हो गई तो चंद्रगुप्त ने उसके कोर्ट में किसको सेंड किया? इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त, Greek king sent his ambassador Megasthenes. The book Indica by Megasthenes give information about administration of Magध Empire. तो बुक किसने लिखी थी? मेगास्थेनीस ने बुक लिखी थी इंडिका, जो इंफॉर्मेशन देगी हमको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी? अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मगध एम्पायर. दिस बुक वॉज रिटन बाय मेगास्थेनीस इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त. पाटलिपुत्र में जब वो गए, मेगास्थेनीस जब पाटलिपुत्र में गए, वहां पाटलिपुत्र में ही उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका. और वो बुक किसने लिखी थी? मेगास्थेनीस ने लिखी थी, जिसके अंदर हमें उस इंडिका बुक में हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी? इट गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, मींस मैनेज कैसे करते थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मगध एम्पायर. नाउ वी विल गो टू टॉपिक अबाउट एक्सटेंशन ऑफ स्टेट्स. कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से स्टेट एक्सटेंशन किए थे, स्प्रेड किए थे, उसने कितने कहां तक उसने अपना ज्यादा रूल फैलाया था. So Chandragupta with his valor and Chanakya's diplomacy means policy, spread the Mauryan dynasty over whole of India. पूरे इंडिया में उन्होंने अपना रूल फैलाया था. वो रूल कर रहे थे पूरे इंडिया में, फ्रॉम अफगानिस्तान, पेशावर, कांधार टू बंगाल एंड सौराष्ट्र ऑल्सो. ये सब प्लेस पे चाणक्य का ही रूल चल रहा था. ओके, सो इन सौराष्ट्र ही अपॉइंटेड गवर्नर. सौराष्ट्र में उसने गवर्नर चूज किया जिसका नाम था पुष्पगुप्ता. क्या नाम था उसका? गवर्नर का नाम क्या था? पुष्पगुप्ता. सो चाणक्य अपॉइंटेड गवर्नर पुष्पगुप्ता इन सौराष्ट्र. पुष्पगुप्ता कंस्ट्रक्टेड सुदर्शन लेक बाय कंस्ट्रक्टेड डैम फ्रॉम गिरनार माउंटेन. पुष्पगुप्ता ने क्या करा था? ही कंस्ट्रक्टेड सुदर्शन लेक. उसने सुदर्शन लेक बनाया एंड ही आल्सो कंस्ट्रक्ट डैम फ्रॉम गिरनार माउंटेन इन गिरिनगर. वो कहाँ पे आए? गुजरात. गुजरात नहीं, जूनागढ़, सौराष्ट्र. सो now we will go to region of South India like Konkan, region like South India like Konkan, Karnataka, Maharashtra etc. were also part of Magध Empire. ये जो भी पार्ट थे, जो मैंने बोला प्लेसेस, कौन से प्लेसेस? कोंकण, कर्नाटका, महाराष्ट्र, in South India. These all were places also come under the Magध Empire. These were also the part of Magध Empire. ये सारे भी Magध Empire के ही पार्ट थे. Okay, now sovereignty of Mughal Empire is all over India. Sovereignty means supreme. Sovereignty means क्या होता है? Supreme. Supreme of Mauryan Empire is all over India. चारों तरफ इंडिया में किसका रूल चल रहा था? As we know, Chandragupta Maurya. Chandragupta spent last of his life with Jain Muni in Mysore. चंद्रगुप्त का जो लास्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ, वो उन्होंने कहाँ बिताई थी? उन्होंने जैन के आश्रम में बिताई थी. सो चंद्रगुप्त स्पेंड लास्ट ऑफ हिज लाइफ विद जैन मुनि इन मैसूर. चंद्रगुप्त रूल फॉर, तो हम कह सकते हैं चंद्रगुप्त रूल फॉर 24 years एंड डाइड इन 297 BC. चंद्रगुप्त रूल फॉर 24 years. चंद्रगुप्त ने 24 years तक रूल किया एंड ही डाइड इन 297 BC. हिस्ट्री ऑफ बिफोर मौर्यन डायनेस्टी इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री. जो मौर्यन डायनेस्टी के पहले की जो हिस्ट्री थी उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्री हिस्ट्री. सो व्हाट डू वी कॉल? बिफोर मौर्यन डायनेस्टी हिस्ट्री. सो हिस्ट्री बिफोर मौर्यन डायनेस्टी इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री. दैट्स व्हाई मौर्यन एम्पायर इज कॉल्ड द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्पायर ऑफ इंडिया. इसलिए हम लोग मौर्यन एम्पायर को क्या बोलेंगे? फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्पायर ऑफ India. Region of South India like Konkan, Karnataka, Maharashtra. These were all parts of Magध Empire. ये सारे parts किसके अंदर आते थे? Magध Empire के अंदर आते थे. Chandragupta Maurya spent his last time of his life with Jain Muni in Mysore में, and Chandragupta ruled for 24 years. Chandragupta ने कितने साल रूल किया था? 24 years, and he died in 297 BC. So children, you have to remember that history before Mauryan dynasty is called prehistory. उनको हम क्या बोलेंगे? prehistory. So that's why Mauryan Empire is called the first historical empire of India. Who was called the first historical empire of India? Mauryan Empire. Mauryan Empire is called the first historical empire of India.
many sources providing information about Mauryan dynasty like Arthashastra, Indica, Dikvansh, then Mahavansh, Mudrarakshak, stone inscriptions, pillar inscriptions, cave inscriptions, stupas and viharas. From this, you will get the information about Mauryan dynasty. Now we will go through the Grand Trunk Road. Grand Trunk Road, short form is GTR. So why this is Grand Trunk Road? This road became a connecting road. जो Grand Trunk Road, this road became a connecting road mainly for traders as the ancient track run across various kingdoms and empires. जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उसको क्यों बनाया था? और ट्रेड के लिए, डेवलप कंट्री जो उनकी किंगडम था उसको डेवलप करने के लिए एक रोड चाहिए था फॉर ट्रेड. सो दिस रोड वाज मेड. जो ग्रैंड ट्रंक रोड इसीलिए बना था एंड इट वाज द ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रोड इन द एशिया. सो ग्रैंड ट्रंक रोड इज द ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रोड इन एशिया. इट वाज फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द चंद्रगुप्त. Who first constructed this road? ये रोड फर्स्ट पहले किसने बनाया था? चंद्रगुप्त ने बनाया था. क्यों बनाया था? To develop his kingdom for trading. And this road जो है the Grand Trunk Road, it was also rebuilt by शेरशाह सूरी. उसको पहले फर्स्ट किसने बनाया था? सबसे पहले किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था. उसके बाद वो दोबारा किससे रिबिल्ट हुआ? दोबारा किसने बनाया? शेरशाह सूरी ने बनाया. सेम वे फॉर ट्रेडिंग ओनली ही हैज बिल्ट दिस रोड. फॉर ट्रेडिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए उन्होंने ये रोड वापस बनाया. एंड ये ग्रैंड ट्रंक रोड थर्ड टाइम किसने बनाया? अगेन इट वाज रिबिल्ट बाय डलहौसी अंडर ब्रिटिश रूल फ्रॉम कोलकाता टू पेशावर. फिर थर्ड टाइम, फर्स्ट टाइम तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ये रूट बनाया था, ये रोड बनाया था. और सेकेंड टाइम शेरशाह ने इसको रीबिल्ड किया. और जब वापस जो डलहौसी थे, लॉर्ड डलहौसी, he again rebuilt this road under British rule from Kolkata to Peshawar. This road again built. Earlier from Tamilpati with Takshila with Central Asia. Tamilpati मतलब क्या होता है? It was the ancient name of city. It was the name of ancient city on the Bay of Bengal. जो तामिलपत्ती है, it was the name of city, ancient city on the Bay of Bengal with Takshila with Central Asia. This road was there and now known as the National Highway. अभी उस रोड को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या है वो? क्या है वो? तो राउंड जस्ट नाउ इट इज नोन एज द नेशनल हाईवे फ्रॉम दिल्ली टू कलकत्ता. जो जीटीआर रोड था पहले, इट वाज ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रोड इन एशिया, बट नाउ इट इज नोन एज द नेशनल हाईवे फ्रॉम दिल्ली टू कलकत्ता. Children, Mauryan dynasty, who was the founder of Mauryan dynasty? Chandragupta Maurya from Magad. Okay. अब इनका बेटा था, उसका नाम था बिंदुसार. So Mauryan dynasty was formed by the Chandragupta Maurya from Magad. His son name was Bindusar, son of Chandragupta. Bindusar कौन था? उनका बेटा था. So Bindusar, he ruled from 297 to 273 BC. बिंदुसार ने कहाँ तक रूल किया? He ruled from 297 to 273 BC. And Bindusar has two sons. उसके भी दो बेटे थे. उसका एक का नाम था प्रिंस सुशील और दूसरा जो था उसका नाम था प्रिंस अशोका. As we know, the Ashoka the Great. So Prince Ashoka. So Bindusar he made the governor of Takshila. बिंदुसार ने, जो बिंदुसार था, उसने अपने एक बेटे को जिसका नाम था प्रिंस सुशील, उसका नाम क्या था? प्रिंस सुशील. सुशील को उसने तक्षशिला का गवर्नर बनाया. और जो अशोका किंग था उसको उसने किसका गवर्नर बनाया? अवंती. ओके. सो अशोका को गवर्नर बनाया किसका? कौन से प्लेस का? सो गवर्नर ऑफ अवंती. ही चूज द गवर्नर ऑफ अवंती, अशोका. सो प्रिंस सुशील he failed to control the rebellion. Rebellion मीन्स क्या होता है? विद्रोही. जो प्रिंस सुशील था वो कंट्रोल नहीं कर पाया. ओके. he was not able to, he was failed to control the rebellion. So you can say that Prince Sushil, he was failed to control the rebellion and Ashoka, he controlled the rebellion. तो उसने विद्रोह को कंट्रोल किया था. ओके. सो बिंदुसार रूल्ड फॉर 25 years. बिंदुसार ने कितने साल रूल किया? 25 years on the throne of Magad. Children, here only we are I'm just stopping the video over here. हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं Emperor Ashoka. We will study about Emperor Ashoka in next